चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्यूनेस का हम लोगों ने रॉ डेटा का क्वेश्चन किया था. आई वॉन्ट यू पीपल टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Obviously, I'll be solving with you all, but before I want you to attempt. Okay. So question number 7 देखो, similar है, कुछ भी difference नहीं है. I'm saying similar. बस decimals introduce किए हैं उन्होंने, nothing else. ठीक है. चलो, try out. क्या क्या है अपने पास? 4.6. It's better to सॉरी SKB कैलकुलेट करना है क्या उसमें? नहीं, डोंट डू दैट क्वेश्चन. आई थॉट इट इज SKP. ओके, SKP का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. मिसलेनियस 3 देखो, चेक आउट मिसलेनियस 3. जैसे मैंने पहले बोला, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच प्रैक्टिस ऑफ इट. जैसे मैंने तुम लोगों को पिछले लेसन के फाउंडेशन के बुक्स में से वगैरह एग्जाम्पल्स दिए थे, है ना, वैसे इसका नहीं करूंगी मैं, बिकॉज ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, चलो मिसलेनियस 3. चलो क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी द आंसर. For the distribution, mean is equal to what? It is 100. Mode is equal to what? It is 80. Now, and standard deviation is 20. They have asked us to calculate Pearsonian coefficient. चलो बताओ जल्दी इसकी. चलो फटाक से आंसर बता दो मुझे. वन आया बाकी लोगों का? Okay. What is this? Mean minus mode upon SD is equal to what? 1. Any doubt? कुछ डाउट है किसी को? Yes, जाए फिर आगे. चलो, one more question. Question number 2. Mean is given to you 60. Median is given to you. Do you remember I have told you? I had told you about this second formula also. Yes, you're going to use that formula here. ठीक है ना? Yes, median. उसके बाद variance is given to you, which is 900. Okay, and we need to find out SKP. चलो बताओ जल्दी. This is that second formula you're going to use here. SKP is what? 3 into mean minus median upon SD. What is mean? Mean is 60. What is median? 75. SD कैसे मिलेगा? SD is what? Under root of variance, which is under root of 900, which is 30. How much is this? 3 into minus 15 upon 30. So this is 10 and this is what? Minus 1.5. So it is negative skewness. All right. Okay. Next. Question number 6 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलग है. We'll read the question together. For the frequency distribution
mean is 200, coefficient of variation is 8%, Carl Pearson coefficient is 0.3, and they have asked us to find out what? Mode and mean. Sorry, median. Can you give an attempt? Chalo, koshish karo at least. Let's try out now. Mean, coefficient of variation is what? Coefficient of variation is SD upon mean. गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं, सही है, into 100 है ना? And this is 8%. SD is how much? We don't know. Mean is how much? 200 into 100. Any doubt till this point? Yes. Any doubt till this point? कुछ doubt है किसी को तो बोलो. Yes. Okay. अब ये और ये गया. So SD कितना आया? SD is equal to 16. SD is what? 16. Okay, I got SD is equal to 16. Now, SKP is what? Mean minus mode upon SD. Okay, this is the formula. SKP is how much? 0.3. Mean is how much? 200. Mode is how much? We don't know. And SD is how much? 16. Okay. So 0.3 into 16 is equal to 200 minus mode. This is how much? 4.8 is equal to 200 minus mode. Okay. Take this mode here. Mode is equal to 200 minus 4.8. Okay. So mode कितना होगा फिर? Mode is equal to 195.2. All right. Okay, 195.2. अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा. मोड तो मिल गया, मीडियन कैसे मिलेगा? कौन बताएगा मुझे? मीडियन किसी ने फाइंड आउट किया? यस, इज देयर एनीवन? वेरी गुड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू, है ना, 3 into मीन माइनस मीडियन. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, तो मीन कितना है फिर अपने पास? व्हाट इज मीन? 200. मोड कितना है? 195.2. 3 इंटू मीन कितना है? 200 माइनस मीडियन कितना है? ओके, हाउ मच इज दिस? 200 माइनस 195.2, it is 4.8 is equal to 3 into 200 minus median. So divide it. So it is 0.16. 200 minus median. क्या बात है मानसी, मिल गया BMCC फाइनली. वेरी गुड. कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे? सही है ना सब? 1.6 चाहिए थे यहाँ पे. 200 minus 1.6. okay, so median is what? 198.4. okay, all right, go through it. थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया. okay, अच्छा क्वेश्चन था इनफैक्ट. so check it out once and tell me if you have any doubts. जाए आगे फिर? यस. ओके, चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी, एक्चुअली ये नंबरिंग कुछ तो गड़बड़ किया है उन्होंने. क्वेश्चन नंबर 3 मतलब वो आई गेस इट इज 7, 8, 9th क्वेश्चन है.
It is, I guess, question number 9. Okay, question number 9. एसकेपी फाइंड आउट करना है, ये किया था इस टाइप का क्वेश्चन. चलो कोशिश करो फास्ट. 18, 27, 10, 25, 31, 13, 28. चलो ट्राई आउट फास्ट, फटाफट कोशिश करो. सो ये हमने एक्साई डेटा का टेबल बनाया. अब एसकेपी का फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज दैट? मीन माइनस मोड अपॉन what? मीन माइनस मोड अपॉन what? SD. एक चीज मुझे बताओ, यहां पे मोड डिफाइन कर सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी? कैन मोड बी डिटरमाइंड? नो. ओके, सो लिखना पड़ेगा मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड. Therefore what? SKP is what? क्या लगाते हैं फिर अपन? मीडियन वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, upon SD. Can you tell me the mean value? Can you tell me the median value? Can you tell me mean value? Can you tell me median value? Can you tell me SD value? Yes, mean तो आसान है. मीन क्या होता है? समेशन xi अपॉन n, है ना. तो n समेशन xi कितना है? 8 and 7 15, 15 and 5 20, 21, 24, 32. 3 and 1 4, 4 into 6 and 1 7 and 2 9 and 3 12 and 3 15, 152 upon 1 1 2 3 4 5 6 7. Now, so how much is this? Mean is equal to what then? Mean is equal to 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 21.714. ओके. मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है? पहले डेटा को असेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है. 10, 13, 18, 18 के बाद आता है 25, 27, 28, 31. 1 2 3 4 5 6 7, है ना. तो क्या है फिर मीडियन? मीडियन इज व्हाट? मिडिल नंबर ना, 25. ओके, मीडियन इज व्हाट? 25. SD बता पाओगे? यस, SD. SD is equal to what? Under root of summation xi square upon n minus x bar square. अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया आंसर. एक काम करते हैं अपन, कैलसी यूज किया क्या मानसी? इसको थोड़ा सा 2 डेसिमल तक ही करते हैं अपन. बड़ा फास्ट सॉल्व किया तुमने. समेशन एक्स स्क्वायर कितना आता है बताओ जरा. समेशन एक्स स्क्वायर कितना आता है बताओ फटाफट. ऑलरेडी सॉल्व. 3692. ओके, upon 7 minus x bar is this. लेकिन उन्होंने स्क्वायर रूट का आंसर नहीं दिया है यार. ये गलत करते हैं वो लोग, गलत करते हैं मतलब बहुत ही. स्क्वायर रूट का आंसर देना चाहिए ना उन्होंने, है ना. ऐसे नहीं करना चाहिए. चलो अपन क्या करते हैं, 152/7 ही रखे इसको तो फिर थोड़ा सा आई गेस अपने लिए सही हो जाएगा. सो आई एम प्लानिंग टू कीप इट एज 152/7 ओनली. ऐसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9 2 ना.
एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3692 इंटू 7 अपॉन 49 माइनस 152 इंटू 152 कितना आता है ये? 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2 and 1 3 0, 5 2 10, 5 5 20, 5 and 1 26, 5 1 5 and 2 7, 0 0 2 5 1 4 0 11 13 2 2 3 1 0 4. Okay, 3692 into 7. 7 2s are 14, 7 9s are 63 plus 164. 7 6 are 42, 42 and 6 48. 7 3s are 21 and 1 21 and 4 25. Okay, so it is what? 25844. 23104 upon 49. ओके, सो दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। 25844 माइनस 23104। देखो डेसिमल्स में बहुत गड़बड़ हो जाता था अपना, है ना? ये ऐसे थोड़ा सा सही हो रहा है कैलकुलेशन। 4720 2740 अपॉन 49। तो आई डोंट थिंक 2740 परफेक्ट स्क्वायर है। It is not perfect square. Okay, we'll keep it as it is. What it is? 2740 upon 7. Okay, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। कॉपी पेस्ट। चलो, मीन का वैल्यू जो मैंने डेसिमल्स में फाइंड आउट किया था ना, उसको डेसिमल्स में नहीं लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए अपने लिए आसानी हो जाएगी। 152 अपॉन 7 माइनस मीडियन इज व्हाट? 25 whole divided by under root of 2740 upon 7. ओके, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ये 21 हो जाएगा। 21 इंटू 152 अपॉन 7 माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2740। अब ये 21 से अंदर मल्टीप्लाई करो। 21 इंटू 152 अपॉन 7 माइनस 21 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 2740। ओके, कितना है फिर ये? 7 1 जा 7 3 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 1 जा 3 and 1 4। ये कितना आया? 25 1 जा 25 25 2 जा 50 50 and 2 52 whole divided by 2740। how much is this? कितना है ये? 456 है, माइनस अपन को करना है 525, so it is around 69 minus 69 upon root 21 2740. Done. That's the answer. Okay, 2740। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, एक बार कैलकुलेशंस बहुत लेंथी थे, क्वेश्चन आसान था। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि मोड जो है, मोड हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, इस वजह से अपन 3 इंटू मीन माइनस मीडियन से उसको रिप्लेस कर देंगे। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करें अभी। क्वेश्चन नंबर इट इज वाज व्हाट 9 ना, 7th क्वेश्चन। कैलकुलेट एसकेपी मार्क्स अबव। ओ अच्छा, ये लिखना है।
डन, ओके। चलो नेक्स्ट, मार्क्स अबव 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Then number of students we are having, 120, 115, 108, 98, 85, 60, 18, 5 and 0. ओके, तो ये जो है मार्क्स अबव, उसको अपन को प्रॉपर इसमें लाना पड़ेगा। मतलब देखो, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, मोर देन टाइप सीएफ है। क्या है, मोर देन टाइप सीएफ है, ठीक है। हमें उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अबव 80 0, अबव 70 मतलब अबव 80 भी आया उसमें, है ना। अबव 75 है मतलब अबव 80 भी इंक्लूडेड है उसमें, तो अबव 70 में से अबव 80 माइनस करना पड़ेगा। 5 minus 0 which is 5. अबव 60 मतलब उसमें अबव 70 भी इंक्लूडेड है, तो मुझे 18 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। सही बात है ना। अबव 50 मतलब अबव 60 भी इंक्लूडेड है इसमें, तो 60 माइनस 18 मतलब कितना करना पड़ेगा, यस 42 हो गया ये। अबव 40 85 है मतलब उसमें अबव 50 माइनस करना पड़ेगा विच इज 25। अबव 30 98 है मतलब उसमें से अबव 40 माइनस करना पड़ेगा विच इज 13। अबव 20 108 है उसमें से अबव 30 माइनस करना पड़ेगा विच इज 10। अबव 10 115 है उसमें से अबव 20 माइनस करना पड़ेगा विच इज 7। अबव 0 120 है उसमें से अबव 10 माइनस करना पड़ेगा विच इज योर 5। अंडरस्टूड दिस पार्ट? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? प्लीज बताओ मुझे, इज देयर एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है किसी को? बोल दो जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते फिर अब, ठीक है। ओके, एसकेपी फाइंड आउट करना है हम लोगों को, है ना। एसकेपी क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी, है ना। ये तुम्हारे एक्सआई के वैल्यूज है। समेशन एक्सआई कितना है, लेट्स चेक इट आउट। 30 30 60 60 and 40 100 150 150 210 280 and 360. Okay, okay, 360. Now yes, ये हो गया समेशन एक्सआई। मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? यस, हाउ कैन यू फाइंड आउट मीन? मीन इज इक्वल टू summation fi xi upon summation fi. So fi xi 0 into 5 0, 10 into 70 70। अनग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है ना, ये अनग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है, इस वजह से इट इज fi xi। डू रिमेम्बर हम लोगों ने किया था चीज। 20 into 10 200, 30 into 13 390, 40 into 25 100 और एक जीरो लग गया और, ओके। एक जीरो तो ऑलरेडी है। 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 1 21, 13 6s are 78, 780, 7 this is what 350,
80 into 0, 0. Okay. So summation fi xi. This is what? 0. 5 and 8, 13. 13 and 9, 22. 22 and 7, 29. 2i. 2 and 2, 4. 4 and 3, 7. 7 and 1, 8. 8 and 7, 15. 15 and 3, 18. 1. This is 4. 4, 8, 9, 0. Check it out. Is there any problem? 0, 0, 0. 8 and 5, 13. 13 and 9, 22. 22 and 7, 29. 9, this is 2. 2 and 2, 4. 4 and 3, 7. 7 and 1, 8. 8 and 7, 15. 15 and 3, 18. So this is 1, and which is what? 4, 8, 9, 0. Okay. So 4, 8, 9, 0. Summation fi is how much? 5 and 7, 12. 12 and 10, 22. 22 and 13. How much is this? 35. Hai 35. This is 60. 60. This is 102. 107. 107 and 13. I'm getting it as 120. Okay. 120. So this is what? 120. All right. Okay. So 3 4s are, 3 1s are, 3 6s are, 3 3s are. So 4 4s are 0, 4 7s are, 4 5s are, 40.75. Okay, 40 point how much? 75 is the mean. Okay, अब SD बहुत 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 जान लेता है कैलकुलेशन के लिए. मोड तो आसान है यार इसका, मोड का कुछ भी नहीं है. मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है देखो जरा. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 42, मतलब 50 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. सो मोड इज व्हाट? 50 है ना. यस, ऑल राइट. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एसडी. एसडी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये ऐसे कैलकुलेशन के लिए ना अपन 163/4 ही रखते हैं. ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता फिर वो कैलकुलेशन. चलो एफ आई एक्स आई स्क्वायर बता पाओगे मुझे? एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई ये फाइनल बता पाओगे? चलो बताओ, जल्दी कोशिश करो. हश, ये सारे कैलकुलेशंस है. सो 40.75. डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते जनरली एग्जाम्स में. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. मतलब 11th के इसमें भी नहीं पूछेंगे. सो दिस इज हाउ मच. हमारे एग्जाम्स ही कब होंगे वो भी तो पता नहीं है हम लोगों को, बट स्टिल. बट मैंने ये क्यों लिया क्वेश्चन? क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए कैलकुलेशन का. ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा बेनिफिट होता है उसका, इस वजह से. ओके, तो इसमें से अगर मैंने ये सब ट्रैक किया, कितना आया? 1905.16 माइनस 1660.56 which is 6.442. So it is what? Under root of 244.60. Now rest of the things you can do now. SKP is equal to mean minus mode upon SD. Okay. So mean is how much? 40.75. Mode is how much? 50. Whole divided by under root of 244.60. ये हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन. ओके, सो थोड़ा सा नहीं, बहुत लेंदी है. ठीक है, बट नो अदर ऑप्शन. ओके, 9.25. ओके, ऑल राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अब. ठीक है,
आते हैं बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। अगेन इट इज आल्सो a formula. Okay, it is also again a formula. So what is that formula? Boles coefficient of skewness. Okay, so SKB is equal to Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1, Q3 minus Q2, Q2 minus Q1, ये फॉर्मूला है। ओके, सो Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, ये क्या है? यस, जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तब तुम्हारा न्यूमरेटर क्या होगा रे? 0 हो जाएगा ना न्यूमरेटर। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में न्यूमरेटर 0। क्यों न्यूमरेटर 0? क्योंकि स्क्यूनेस 0 होता है। सिंस स्क्यूनेस इज 0, योर स्क्यूनेस 0 कब आएगा फॉर सिमेट्रिक? जब न्यूमरेटर 0 होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस, व्हाट आई एम सेइंग फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला समझा रही तुम लोगों को, ध्यान दो। फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन SKB is what? 0. That means what? Numerator is 0. Denominator तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव हो रहा है ना, दो डेविएशंस ऐड हो रहा है, तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता। सो न्यूमरेटर वुड बी 0. Okay, so this is what? Q3 minus Q2 minus Q2 plus Q1 is equal to 0. So this is what? Q3 plus Q1 is equal to 2Q2. So Q2 is what? Q3 plus Q1 upon 2. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये Q1 है, ये Q3 है, ये Q2 है. That means what? Q2 is at exact middle of Q1 and Q3. And that is why the data is what? Symmetric. Understood or not? ये SKB 0 करने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे ये रिलेशन मिला। ये रिलेशन क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है कि Q2 is equidistant from what? Q1 and Q3. That means what? Yes, Q2 जो है equidistant from Q1 and Q3 means what? There is symmetric. The data is symmetric. There is symmetricity. है ना? और अगर SKB 0 नहीं होता है तो ये भी हमें नहीं मिलेगा। That means we can say that, what we can say that, yes, what we can say that data is not symmetric because ये relation मिल ही नहीं रहा है अपन को, ये relation नहीं मिल रहा है, मतलब Q2 is not equidistant from Q1 and Q3. That is why we can say what? The data is asymmetric. Data is not symmetric because SKB is not 0. समझ में आई बात क्या बोला मैंने? SKB 0 नहीं है. That means what? Yes, that means your data is not symmetric. Q2 is not equidistant from Q1 and Q3. कार्ल पियर्सन ने क्या यूज किया था? मीन एंड मोड का हेल्प लिया था. ये किसका हेल्प ले रहा है? क्वार्टाइल्स की हेल्प ले रहा है टू आइडेंटिफाई द सिमेट्रिसिटी. Okay, understood? So therefore, whenever SKB is 0, this numerator is equal to 0. Whenever SKB is positive, this difference is also positive. Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1. Okay, this is what? Positive skewness, na? Okay, SKB is less than 0. This is what? Negative skewness. That means Q3 minus Q2 is less than Q2 minus Q1.
ओके, सो दैट इज नेगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब इस फॉर्मूला को ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, वैसे तो डायग्राम्स में कुछ डिफरेंस है नहीं, डायग्राम सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, बस पहले मीन मोड मीडियन था, अब अपना Q1 Q2 Q3 है, नथिंग एल्स। ओके, सो अगर तुम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करोगे तो पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में तुम्हारे डायग्राम, तुम्हारा जो लोकेशन होगा Q1 Q2 Q3 का, वो कुछ इस तरीके से होगा। This is your Q2, this is your Q1 and this is your Q3। ओके, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव स्क्यूनेस का रिलेशन। ओके, और ये जो है दिस इज योर नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, दिस इज व्हाट योर नेगेटिव स्क्यूनेस is what negative। ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है बट इट इज नॉट सिमेट्रिक एक्चुअली, जिस तरीके से। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन। ध्यान दो जरा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है इसको। Q3 minus Q2 minus Q2 plus Q1 upon Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1, this and this will go. So what is left? Q3 plus Q1 minus 2Q2 upon Q3 minus Q1। This is what Boles coefficient of skewness। ठीक है, Boles coefficient of skewness। ठीक है, सो कब यूज करेंगे रे ये? यस, क्वार्टाइल्स कब यूज करते हैं अपन, कौन बताएगा मुझे? व्हेन डू वी यूज क्वार्टाइल्स? हु कैन टेल मी, किसी को याद है? व्हेन डू वी यूज क्वार्टाइल्स? कैन एनीवन टेल मी? कोई नहीं बता पाएगा? When do we use quartiles? अरे whenever open-ended classes are there, whenever we have open-ended classes, we go with what? We go with quartiles, है ना? We go with quartiles। तो SKB कब यूज होगा? SKB open-ended classes के केस में यूज होगा। कब यूज होगा? open-ended classes के केस में यूज होगा, है ना? सो ओपन एंडेड क्लासेस जब पिक्चर में आएंगे तब तुम एसकेबी यूज करते हो, अदरवाइज यू गो विथ एसकेपी ओनली। अंडरस्टूड? ओके, व्हेन टू यूज एसकेपी एंड व्हेन टू यूज एसकेबी, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, सो दैट इज द केस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर छोटा सा सम सॉल्व कर लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है उन्होंने? फॉर ए डेटा सेट sum of upper and lower quartiles is 100, difference between upper and lower quartile is 40, median is 30, find coefficient of skewness। Can you try? Can you tell me the answer? Formula is there with you, ऊपर ही फॉर्मूला है एसकेबी का, चलो वही फॉर्मूला लगाना है। कैन यू टेल मी द आंसर? चलो कोशिश करो।
ओके, 1 आ रहा है, लेट्स चेक इट आउट। Q3 plus Q1 is 100 minus 2 into Q2. Q2 is median, no? Q2 is median basically. So 30 upon Q3 minus Q1, 40. This is how much? 100 minus 60 upon 40. So which is 1. All right. Okay. So we'll stop here. In next class, maybe we will be done with this chapter, and after that we will start with the new chapter from part 1. Okay. So ये chapter इतना important नहीं था, तो इसका मैं extra practice नहीं दे रही हूँ. Okay. So अगले chapter जो होंगे उसको जरूर तुम लोगों को extra questions मिलेंगे. ठीक है. Maybe next Sunday you will be having test on 3 chapters of part 2. Next Sunday, not this one. Okay. So be prepared. Next Sunday you will be having the test on these 3 chapters of part 2. ठीक है. चलो, bye bye. Let's stop here.